میرے بچے کی خاطر اپنے شوہر کی شادی اپنی سہیلی سے کروا دی۔ میری سہیلی یتیم تھی، اس نے کہا کہ زندگی بھر میں تمہاری غلامی کروں گی، لیکن شادی کو 3 دن ہو چکے تھے اور میرا شوہر کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ سہیلی سے پوچھتی تو وہ شرماتی ہوئی کہتی کہ وہ تھک جاتے ہیں اس لیے سوئے رہتے ہیں۔ ایک دن چھپکے سے اپنے شوہر کے کمرے میں چلی گئی۔ میری چیخ نکل گئی کیونکہ میری سہیلی نے میرے شوہر کو ریاض اور میری شادی کو 7 سال گزر گئے تھے، مگر ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ ریاض مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے، میں بانجھ تھی، مگر میں نے ریاض سے جھوٹ بول دیا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے ہمارا بچہ بہت جلد ہو جائے گا، اور ریاض نے بھی میری بات پر یقین کر لیا تھا، لیکن اب میں اور زیادہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں جھوٹ بول بول کر تھک چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے ساری سچائی اپنے شوہر کو بتا دینی چاہیے، اب میں اسے اور دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر کو حقیقت بتانے سے پہلے ایک بار میں نے اپنی ماں کو فون کیا تھا اور پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ امی کہنے لگی تم ایسا کرو کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دو، تمہارا شوہر تمہارا احسان مند رہے گا اور تمہیں چھوڑنے کا کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ امی کی بات سن کر مجھے بہت ہی غصہ آیا تھا، ساتھ ہی دکھ بھی ہوا تھا۔ مجھے یہی لگا کہ میری امی مجھ سے دشمنی نکال رہی ہے کیونکہ میں نے ان کی بہت بدنامی کرائی تھی۔ میں غصے سے بولی امی مجھے آپ سے اس بات کی امید بالکل نہیں تھی۔ اتنا کہہ کر میرے غصے سے فون بند کر دیا تھا۔ شام کے وقت جب ریاض گھر واپس آیا تو مجھے دیکھ کر بولا کیا بات ہے آمنہ، تم نے کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ میں بولی میری قسمت میں ہی اندھیرا لکھ دیا گیا ہے، اس اندھیرے کا کیا کروں، میں تو اجڑ گئی ہوں۔ ریاض کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر تمہارے پاس موجود ہوں، خدا کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر بیٹھے بٹھائے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ریاض کو پھر سب کچھ بتا دیا کہ میں بانجھ ہوں اور میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ آج چیک اپ کرانے کے لیے گئی تھی، اس نے کہا ہے کہ تم بانجھ ہو اور اب تم عمر بھر بچہ پیدا نہیں کر سکو گی۔ میری بات سن کر ریاض پل بھر کے لیے ان کے چہرے پر اداسی ابھر آئی تھی، لیکن فوراً ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کوئی بات نہیں آمنہ، میرے لیے تم ہی کافی ہو، مجھے تمہارے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ریاض کے تسلی دینے پر میں نے اپنا موڈ ٹھیک کر لیا تھا، لیکن ایک دن یہ بات میری ساس کو بھی پتا چل گئی اور پھر ان کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ ایک دن ہماری پڑوسن ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، میری ساس ان سے کہنے لگی کہ تم مجھے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ دو کیونکہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ ہماری پڑوسن کہنے لگی تمہاری پہلی بہو کو کیا ہو گیا جو تم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہو؟ تب میری ساس بولی وہ بیچاری تو بانجھ ہے، اب ہمیں تو اپنی نسل بڑھانی ہے نا، اس لیے مجھے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ یہ سب باتیں سن کر میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ جب ریاض گھر واپس آیا تو میں نے رو رو کر اسے ساری کہانی سنائی۔ ریاض نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے گیا اور اپنی ماں کے پاس کھڑا کر کے بولا امی آمنہ کے علاوہ میں کسی لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اور مجھے بچوں سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت ہے، اس لیے آج کے بعد آپ میری دوسری شادی کی بات بھی مت کرنا۔ میری ساس نے غصے سے سر جھٹکا اور کہنے لگی میں نے تو آج تک ایسا مرد نہیں دیکھا جو اپنی بانجھ بیوی کے اس قدر ناز نخرے اٹھاتا ہو۔ جبکہ ریاض کی باتیں سن کر میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا، میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ کتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکریہ ادا کیا تھا کہ ریاض کا پیار میرے لیے ایسے ہی بنائے رکھنا۔ رات ہوئی تو میں نے سوچا کہ ریاض کو چائے بنا کر دے دوں۔ میں چائے بنانے کچن میں آئی تو میری ساس کے کمرے سے آواز آ رہی تھی، میں اپنا نام سن کر چونک گئی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ اپنی بیٹی سے فون پر کہہ رہی تھی کہ تم فکر نہ کرو، میں آمنہ کو طلاق ضرور کروں گی، تم ایسا کرو کہ اس کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دو۔ یہ باتیں سن کر میرے قدموں سے تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں چائے بنائے بغیر ہی کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ مجھے اب اپنی ماں کا خیال آیا تھا، مگر پچھلی بار انہوں نے جو مشورہ مجھے دیا تھا وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بھی میری ساس کی طرح میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی امی کو فون ملا دیا اور میں رونے لگی تھی۔ امی بولی آمنہ بیٹی تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کیا میرے ساتھ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا؟ امی کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ میری ماں میری خاطر تڑپ رہی ہوگی۔ میں کہنے لگی امی میری زندگی پہلے تو بہت اچھی تھی، مگر جب سے مجھے اس بات کا پتا چلا ہے کہ میں بانجھ ہوں تب سے ہر وقت میرے سر پر تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ میری ساس نے پڑوسن سے کہا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈو تو کبھی اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ اس بار بہو میں اپنی پسند کی لے کر آؤں گی، تم اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈو۔ امی ریاض بہت ہی اچھا
انسان ہے، میری خاطر اپنی ماں سے لڑ جاتا ہے، مگر آخر ہے تو مرد ہی نا، کب تک مجھے اپنے دل کی رانی بنا کر رکھے گا۔ ایک نہ ایک دن تو اسے اس بات کا احساس ہو ہی جائے گا کہ اس کی زندگی میں بھی ایک بچہ ہونا چاہیے اور اسے دوسری شادی کر لینا چاہیے۔ امی کہنے لگی، مجھے احساس ہے کہ اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہوگی، اس لیے تو تمہیں اس دن اس بات کا میں نے بولا تھا کہ تم ریاض کی دوسری شادی خود اپنے ہاتھوں کروا دو، وہ اپنی کروڑوں کی جائیداد یوں ہی تو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے اسے وارث چاہیے ہوگا، آج نہیں تو کل وہ دوسری شادی کے بارے میں ضرور سوچنے لگے گا۔ اگر تمہارے شوہر نے اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لی تو پھر سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ میری مانو تو کسی غریب گھر کی لڑکی سے اس کی شادی کروا دو، وہ تم سے دب کر رہے گی اور تمہاری احسان مند بھی رہے گی اور کبھی بھی تمہاری جگہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ بچہ پیدا کرے گی تو تم بھی برابر کی ماں کہلانے کی حقدار ہوگی۔ امی کی باتیں سن کر مجھے لگا، امی آپ کی نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ریاض کی دوسری شادی کروائے بغیر میرا اب اس گھر میں گزارا ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات میرے دل پر کسی قیامت کی طرح گزر رہی تھی کہ میں خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے شوہر کی شادی کروا رہی تھی، لیکن یہ میری مجبوری تھی اور مجھے ریاض پر یقین تھا کہ ریاض کا پیار میرے لیے کبھی بھی کم نہیں ہوگا، اور اسی لیے میں گھر والوں سے چوری چھپے ریاض کے لیے لڑکی ڈھونڈنے لگی تھی۔ میں گاؤں کی رہنے والی تھی، گاؤں کی چودھری اور سرپنچ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے ماں باپ اور بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے، میری زندگی بہت ہی خوبصورت تھی، مگر مجھے صرف ایک ہی چیز کی کمی تھی اور وہ یہ تھی کہ میرا رشتہ میرے ماں باپ نے بچپن میں ہی طے کر رکھا تھا، اور جس لڑکے سے میرا رشتہ طے تھا اس کا نام راشد تھا۔ اس نے آج تک اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی جبکہ میں نے انٹر کیا ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکی اگر انٹر پاس کر لے تو اس کو بہت بڑی بات مانی جاتی تھی، اور پھر راشد بہت ہی عجیب قسم کا انسان تھا۔ تعلیم تو میرے بھائیوں نے بھی حاصل نہیں کی تھی، مگر وہ پھر بھی سلجھے ہوئے تھے، بات کرنے کا ڈھنگ انہیں آتا تھا۔ امی نے میرے بھائیوں کی پرورش بہت ہی اچھے طریقے سے کی تھی، لیکن راشد کو تو اچھے برے کی تمیز تک نہیں سکھائی گئی تھی۔ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چلتا تھا۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے مجھے اس سے بہت ہی نفرت ہو گئی تھی۔ راشد کی ایک بات جو مجھے بہت ہی بری لگتی تھی کہ وہ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی سے چکر چلانے کے باوجود وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، مجھے آمنہ کی جگہ جان کہہ کر بلایا کرتا تھا، مجھ سے کہتا کہ جان میں تمہارے بنا مر جاؤں گا، اور میں راشد سے کہتی کہ گاؤں کی ساری لڑکیاں ہی تمہاری جان ہی ہیں، تو تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تو وہ کہتا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ایک بار راشد میرے لیے گاؤں کے میلے سے کانچ کی چوڑیاں لے کر آیا تھا۔ راشد کی ان حرکتوں سے مجھے غصہ آتا تھا۔ میں راشد کی لائی ہوئی چوڑیاں اپنے پیروں کے نیچے ڈال کر توڑ دی تھی۔ میری اس حرکت سے میں نے پہلی بار راشد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، اور راشد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن راشد اتنا گرا ہوا تھا کہ اگلے ہی دن ایک لڑکی کے ساتھ گھومتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور پھر میرے دل میں جو اس کے لیے تھوڑی سی ہمدردی جاگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ امی پاپا سے بات کرتی تو وہ کہتے کہ کوئی بات نہیں، ابھی وہ بچہ ہے، خود ہی سنبھل جائے گا۔ خیر کچھ سال پہلے ہی میرے بڑے بھائی نے گاؤں میں ہسپتال بنانے کی درخواست دی ہوئی تھی۔ انہی دنوں ایک ٹیم گاؤں میں آئی تھی اور زمین وغیرہ کا کہہ کر گئی تھی۔ گاؤں میں ایک بہت ہی بڑے سے ہسپتال کی بنیاد ڈالی گئی تھی، وہاں سب لوگ ہی پاپا کے ڈیرے میں ٹھہرے تھے۔ کچھ دن بعد ٹیم واپس چلی گئی تھی، مگر ایک انسان ایسا تھا جو واپس نہیں گیا تھا، اور اس کا نام تھا ریاض۔ اس کو اس گاؤں کی آب و ہوا بہت اچھی لگی تھی، اس لیے اس نے پاپا سے اجازت لے کر کچھ دن یہی رہنے کا ارادہ بنا لیا تھا۔ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکلی تو میری نظر ریاض پر پڑی آ گیا تھا۔ ریاض کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ میں بھی اسے پسند آ گئی ہوں، اور پھر اگلی بار میں ریاض سے خود ہی ملنے چلی گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا تھا اور کہنے لگا مجھے بھی آپ کا انتظار تھا۔ اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا، میں نے امی کے فون سے اسے فون کیا تھا اور ہم دونوں کی محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تب میں نے اسے اپنے منگیتر راشد کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ میری بات سن کر بہت حیران ہوا تھا، کہنے لگا وہ تو بہت ہی عجیب انسان ہے، میں اس کے ساتھ 2 منٹ کھڑا رہ کر بات بھی نہیں کر سکتا، تم اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزارو گی؟ میں نے ریاض سے کہا کہ تم اپنا رشتہ لے کر میرے گھر آؤ، ہو سکتا ہے میرے ماں باپ کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ریاض نے حامی بھری تھی اور واپس شہر چلا گیا تھا، اور پھر پورے 1 ہفتے بعد اپنی بہن اور اپنی ماں کے ساتھ واپس لوٹا تھا۔ اس نے میرا رشتہ مانگا تھا، مگر میرے پاپا نے منع کر دیا تھا۔ میں بہت بے چین ہو گئی تھی، میں ہر وقت روتی رہتی
रहती थी। मेरी भाभी और मेरी अम्मी मेरी दिलजोई करने की कोशिश किया करती थी। एक दिन मैंने पापा से बात करने का फैसला लिया। मैंने उनसे कह दिया कि मैं राशिद से शादी नहीं कर सकती। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, मैंने राशिद की माँ को ज़बान दे रखी है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं राशिद की माँ से किया हुआ वादा इस तरह तोड़ नहीं सकता। बाबा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पापा कहने लगे, कोई बात नहीं, वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। औरत अगर अच्छी और वफादार हो तो बद से बदतर लड़का भी ठीक कर लेती है। बाबा ये कहकर बाहर निकल गए थे। मैंने उसी वक्त रियाज को फोन किया था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। वो कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और फिर मैं भी रियाज के साथ शहर भाग आई थी। मुझे मालूम था कि मेरे पापा की बहुत बदनामी होगी, मगर मैं मजबूर थी। मैं रियाज को खोना नहीं चाहती थी। रियाज ने मेरे साथ शादी की और मुझे अपने घर ले गया था। मगर जब रियाज, वो कहने लगी, बेटा, तुम गांव के चौधरी का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे डर है कि वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। रियाज भी एक करोड़पति बाप का बेटा था, मगर मेरी सास जरा पुराने ख्यालात की मालिक थी। उन्होंने घर से भागी हुई लड़की को बहू के रूप में कबूल नहीं किया था। उन्होंने मेरे और रियाज के बीच इख्तिलाफात डलवाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन रियाज एक अच्छा शौहर साबित हुआ था। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने मुझे इज्जत दी थी। ये भी खुदा का शुक्र था कि मेरे पापा और भाइयों ने मेरा पीछा नहीं किया था, नहीं तो मेरी जिंदगी जहन्नुम बन जाती। खैर, जहन्नुम तो अब भी बनी हुई थी, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि मैं बांझ हूँ, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे यही ख्याल आता था कि मेरे साथ ये सब मेरे माँ बाप की बद्दुआ का नतीजा तो नहीं है। खैर, अब मैंने अपने शौहर की दूसरी शादी करवाने की सोच ली थी। मैं अपनी सास की जिद के आगे अपनी जिंदगी तबाह होने नहीं देना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी सास से चोरी छुपे मोहल्ले की एक औरत को कुछ पैसों के बदले अपने साथ मिला लिया था। मैंने उससे कहा था कि तुम मुझे किसी मजबूर, गरीब, लाचार सी लड़की का रिश्ता ला कर दो और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस औरत ने मुझे अपने घर पर बुलाया था। उसने मेरे सामने एक लड़की की तस्वीर रखी थी। मैं तो उसकी खूबसूरती देखकर ही दंग रह गई थी, क्योंकि वो मेरी बहुत पुरानी सहेली थी, स्कूल के दौर की। रिश्ता करने वाली वो औरत कहने लगी, ये लड़की यतीम है और अपने चचा के साथ रहती है। इसकी चाची चाहती है कि ये जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। मैं तो लड़की की तस्वीर देखकर बोली, आंटी, मैं कभी अपने शौहर की शादी इस लड़की से नहीं करूंगी। इसका हुस्न तो देखो, मेरा शौहर तो इसके इश्क में पागल ही हो जाएगा। वो औरत कहने लगी, बेटा, ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसको हाथ से मत जाने दो। ये बहुत ही सीधी सादी सी लड़की है, तुम्हारे सामने दब कर रहेगी। मेरा जी तो नहीं मान रहा था, मगर मैंने उस आबदा नाम की लड़की का रिश्ता कबूल कर ही लिया। मैं तस्वीर लेकर घर पहुंची तो बड़ा अजीब सा मंजर देखने को मिला था। मेरा शौहर और ननद उसके सामने बैठी हुई थी। मेरी ननद बोली, भाई, आप एक बांझ लड़की के साथ जिंदगी क्यों गुजारना चाहते हैं? मैंने और अम्मी ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है, तुम उससे शादी कर लो। जिस पर रियाज बोला, आप दोनों अब बस भी करो। मैंने पसंद की शादी करके कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं कर लिया कि आप मुझे हर वक्त ताने देते रहते हैं। मैंने आपसे कह दिया है कि आमना के अलावा मैं किसी को भी कबूल नहीं करूंगा। वो मेरी बीवी है और मरते दम तक वही मेरी बीवी रहेगी। जहाँ सास और नंद की बातों ने मेरा दिल छलनी कर दिया था, वही रियाज की बातें सुनकर मुझे बहुत ही हिम्मत मिली थी। मैं उनसे कुछ बोले बिना ही कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद रियाज भी मेरे पीछे ही आ गया था। वो कहने लगा, तुम मम्मी की बातों को दिल पर मत लेना। मैं बोली, आप दूसरी शादी कर लें रियाज मेरी बात पर हैरान हो गया था। वो कहने लगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैंने कहा, आपको दूसरी शादी की इजाजत दे रही हूँ, मगर आप मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेंगे, अपनी माँ की पसंद की लड़की से नहीं। रियाज कहने लगेंगे, अपनी माँ की पसंद की लड़की से नहीं। रियाज कहने लगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी को कबूल नहीं कर सकता, फिर वो चाहे तुम्हारी पसंद की हो या फिर अम्मी की पसंद की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोली, मुझे बच्चे की ख्वाहिश है, आपकी शादी हो जाएगी तो हमारे घर भी बच्चे होंगे, मेरी तरसी हुई ममता को सुकून मिल जाएगा। रियाज ने इनकार कर दिया और कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं वहीं बैठी रोती रही। सच तो ये है कि मुझे बच्चों की कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं तो ये सब बस रियाज को खोने की डर की वजह से कर रही थी। खैर, कुछ दिन बाद मेरे और रियाज के बीच नाराजगी रही थी, मगर मैंने उसे रो रो कर दूसरी शादी के लिए तैयार कर ही लिया था। मगर मैं खुश नहीं थी। आबदा मेरी सहेली थी और जिस दिन वो मेरी सौतन बनकर मेरे घर आई थी, मेरी सास ने खूब हंगामा मचाया था। उन्होंने रियाज के साथ भी बहुत लड़ाई की थी कि कम से कम दूसरी शादी तो मेरी मर्जी से कर लेते। सास को यूं जलता हुआ देखकर वैसे तो मुझे सुकून मिल जाना चाहिए था, मगर मैंने वो पूरी रात इंगारों पर गुजारी थी। मैं पूरी
पूरी रात रोती रही। मेरी रूह को छलनी करने के लिए काफी था कि जिस इंसान की आंखों में सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत हुआ करती थी, आज वो किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। जिस इंसान की बाहों में अब तक मैं सोती आ रही थी, आज उसकी बाहों में कोई और सो रही होगी। मुझे किसी पल सुकून नहीं मिल रहा था। पूरी रात करवटें लेते लेते गुजरी थी। सुबह हुई तो मैं जल्दी से अपने कमरे से निकल आई थी, क्योंकि मैं रियाज से मुलाकात करना चाहती थी, मगर वो तो दिन के 12 बज जाने पर भी कमरे से नहीं निकला था। मैंने अपनी सौतन से पूछा तो वो कहने लगी, रियाज तो सो रहे हैं। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोली, तुमने उसे जगाया नहीं? तब वो रोने लगी थी और बोली, रियाज ने मुझसे कहा है कि उन्होंने ये शादी सिर्फ आपकी जिद की वजह से की है और अब मैं किसी भी तरह उन पर अपना हक ना जताऊं, नहीं तो वो मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं इन्हें जगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं फिर से अपनी चाची के घर जाने का सोच भी नहीं सकती। मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। रिश्ता करने वाली आंटी ने सच में बहुत ही मजबूर सी लड़की मुझे ढूंढ कर दी थी। मैंने सोचा कि रियाज मुझसे नाराज होंगे, खुद ही जब मूड ठीक हो जाएगा तो कमरे से बाहर निकल आएंगे, मगर मेरी ये गलत फहमी थी। रियाज की शादी को आज तीसरा दिन था, मगर वो अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। मुझे अजीब से ख्याल सताने लगे थे, इसलिए जब एक दिन आबदा किचन में बिजी थी तो मैं उसके कमरे में चली गई थी। रियाज अपने मोबाइल पर बिजी था। कदमों की आवाज सुनकर बोला, आ गई मेरी प्यारी आबदा। ये लफ्ज हथौड़े की तरह मेरे सर पर आकर लगे थे। मैं वापस इन्हीं कदमों से लौट आई थी। क्या सिर्फ 3 ही दिनों में आबदा ने रियाज को अपना बना लिया था? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा दिल बहुत ही तड़प रहा था। मैं अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी थी, तब पता चला कि मेरी तो ननद भी आई हुई थी। मेरी सास अपनी बेटी से कह रही थी, देखा तुम्हारी माँ कितनी सियानी है। मैंने एक ही चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आमना बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम कि उसने अपने शौहर की शादी से करवाई है। वो मेरी पसंद की लड़की थी और फिर रियाज भी आबदा पर पहले ही नजर में फिदा हो गया था। ये सब तो इस लालची औरत की वजह से हुआ है जिसने आमना को बेवकूफ बनाया था। ये सब सुनकर मेरा दिल फटने लगा था। मेरी सास आगे बोली, मैं आमना को खाने में बच्चा ना होने वाली इतनी गोलियां खिलाई हैं, क्या वो सच में बांझ बन चुकी है? ये लफ्ज पत्थर बनकर मेरे जिस्म पर बरस रहे थे। मैं जल्दी से अपने शौहर के कमरे की तरफ गई थी ताकि उसको बता सकूं कि आपकी माँ और बहन की बातें सुने, इन्होंने मुझ पर कितना जुल्म किया है। जब मैं रियाज के कमरे की तरफ गई तो वो आबदा से कह रहा था, मैंने जज्बात में आकर बहुत ही गलत फैसला कर लिया था। जब मैं आमना को भगा कर लाया था तो शादी के कुछ ही वक्त बाद मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आमना के भाइयों को पता चल चुका था कि वो मेरे साथ आई है, इसलिए वो मुझे फोन करके धमकाते रहते थे। हमारी बहन घर से भागी जरूर है, मगर अब भी वो अकेली नहीं है। अगर तुमने हमारी बहन का ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारे रहकर आया था। मुझे पता है कि वहाँ लोग कितने खतरनाक हैं, इसलिए मैं उसको छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। अब अम्मी ने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मेरी बीवी को पागल बनाया और उसी के हाथों मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी है। और मेरी जान, तुम भी मुझे पहले ही नजर में भाग गई हो। जिंदगी भर अब तुम मेरे साथ रहोगी। हाय, मैं ये क्या सुन रही थी? ये वही रियाज था जिसकी वजह से मैंने खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं दबे कदमों के साथ रियाज के कमरे में चली गई थी। वो मुझे अपने सामने देखकर हैरान हो गया था। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका राज इतनी जल्दी जान लूंगी। मैं बोली, रियाज अगर छोड़ना ही था तो यूं ही छोड़ देते, मुझे बांझ बनाना जरूरी था? क्या किसी इंसान से खुदा की दी हुई सौगात छीन लेना उसका खून कर देने के बराबर होता है? तुम सब ने मिलकर मुझे बेमौत मार दिया है। इतना कहकर मैं उसके कमरे से निकल आई थी। वो मेरे पीछे आया था, कमरे का दरवाजा कहकर मैं उसके कमरे से निकल आई थी। वो मेरे पीछे आया था, कमरे का दरवाजा खटखटाता रहा, मगर मैंने दरवाजा नहीं खोला। फिर इसी रात में रियाज के घर से और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल आई थी। मैं अब एक यतीम खाने में रहती हूँ। मैंने रियाज से अभी तक तलाक नहीं ली है, क्योंकि अब मुझे किसी भी मर्द पर यकीन नहीं था। तो फिर तलाक लेने का क्या फायदा? मैं अम्मी से फोन पर बात कर लिया करती हूँ। वो मुझसे मिलने भी आती है, वो मुझे घर ले जाना चाहती है, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने भाइयों और अपने बाप का सामना कर सकूं। एक दिन अपनी किस्मत पर बैठी आंसू बहा रही थी, तभी बाहर बैठा गार्ड मेरे पास आया था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। मुझे देते हुए कहने लगा, मैडम जी, ये लिफाफा एक आदमी आपके लिए देकर गया है। इस लिफाफे पर नजर पड़ते ही मुझे पहला ख्याल रियाज का आया था और इस ख्याल के साथ ही बेताशा नफरत मेरे दिल में आ गई। अब तो मुझे रियाज के नाम से ही नफरत हो गई थी। खुद पर हंसी आती थी कि कभी मैंने रियाज को दिलो जान से चाहा था। जी चाहा कि वो लिफाफा उठाकर जान से चाहा था। जी
चाहा कि वो लिफाफा उठाकर अभी बाहर फेंक दूं और अपने इस ख्याल को पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा रियाज मेरे लिए इतना कब से मेहरबान हो सकता है कि वो मुझे कोई गिफ्ट भेजे। वो तो अपनी आपदा में खोया हुआ है और जो कुछ उसने और उसकी माँ ने मेरे साथ किया है उसके बाद तो मैं रियाज से किसी बात की उम्मीद ही नहीं कर सकती थी। कुछ सोचकर मैंने वो लिफाफा उस गार्ड से ले लिया और अंदर कमरे में बैठकर जब लिफाफा खोला तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी, क्योंकि उसमें वही रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां थी जो कभी मुझे राशिद ने दी थी। इन चूड़ियों को देखते ही राशिद का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया था। हो ना हो ये चूड़ियां मुझे राशिद ने भेजी थी। मैं फौरन दरवाजे की तरफ भागी थी और गार्ड से पूछा ये चूड़ियां तुम्हें किसने दी? तो उसने बताया कि जिस आदमी ने ये चूड़ियां दी थी वो कब का जा चुका है, लेकिन साथ ही उस आदमी ने कहा था कि अगर आमना मैडम इन चूड़ियों को तोड़ दे तो तुम इन कांच की चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रख लेना और मुझे दे देना। पूछी है, मेरी आंखों से बेताशा आंसू बह रहे थे। लोफर और लापरवाह राशिद का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। क्या राशिद को मैं अब भी याद थी? क्या राशिद अब भी मुझसे मोहब्बत करता है? लेकिन मैं अब किसी पर यकीन नहीं कर सकती थी। मैं कांच की चूड़ियों को हाथ में थामे वापस कमरे में आ गई थी और अगले दिन जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो मैंने राशिद के बारे में पूछा था और राशिद के बारे में जो कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था। माँ ने बताया कि जिस दिन तुम रियाज के साथ घर से भाग गई थी उस दिन राशिद बहुत रोया था। उसकी चीखों से पूरा गांव अपना दिल थाम के रह गया था। वो चीख चीख कर बस आमना आमना पुकार रहा था। मुझे याद आया कि माँ ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वो एकदम बदल गया था। उसने अपने बाप की सारी जमीनों को बेचकर गांव में एक स्कूल खुलवाया था। उसे लगता था कि तुम उसे अनपढ़ होने की वजह से छोड़ गई हो। स्कूल में टीचर रखकर उसने गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया था। साथ साथ शहर में अपना एक बिजनेस भी खड़ा किया था जो धीरे धीरे तरक्की करता गया। और अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जितना ही उसके पास पैसा है उतना ही वो गरीबों को देता है। वो कहता है मैं इतने सारे पैसों को अपने पास रखकर क्या करूंगा जब मेरी आमना ही मेरे पास नहीं है। ना हंसता है ना बोलता है, बस चुपचाप अपने आप में खोया रहता है। जब तुम्हारे पापा और मैं उसे देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उसके हालात के जिम्मेदार हमारी अपनी बेटी है। राशिद के बारे में ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जल्द से जल्द राशिद से मिलना चाहती थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल राशिद से मिलने के लिए मिचल उठा था। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मैं राशिद से एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ की आंखों में चमक आ गई थी। कहने लगी, अगर तुम चाहो तो राशिद के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। वो अभी तुम्हारे इंतजार में है। लेकिन मैं अब कहाँ राशिद के काबिल थी। मैं तो एक बांझ औरत थी और एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन मैं एक बार राशिद से मिलकर उसे माफी मांगना चाहती थी जो मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई बैठी थी। मैं राशिद के घर पहुंच गई थी। उस वक्त राशिद अपने घर पर नहीं था। नौकर ने मुझे बाहर हॉल में ही बिठा दिया था। मम्मी और मुझे बैठे काफी देर हो गई, लेकिन राशिद अभी तक नहीं आया था। तब मैं नौकर से पूछकर राशिद के कमरे में चली गई थी। साफ सुथरा कमरा, ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही पढ़े लिखे इंसान का कमरा है। और फिर अचानक ही मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि मैं वहीं दिल थाम कर बैठ गई थी। सामने ही दीवार पर शीशे लगे फ्रेम में उन्हीं कांच की टूटी चूड़ियों के टुकड़ों से आमना लिखा हुआ था, जिसका मतलब है राशिद मुझसे उसी वक्त से इतनी मोहब्बत करता था और मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई थी। राशिद ने जब मुझे पहली बार चूड़ियां गिफ्ट की थी और मैंने उन्हें पैरों से कुचल कर तोड़ दिया था, राशिद ने उन चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रखा हुआ था और आज तक उन्हें संभाल कर रखे हुए था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और पता ही नहीं चला कि राशिद मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था और जब उसने आमना कहकर पुकारा तो मैं अचानक ही पलटी थी। वो तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा था। वो लापरवाह सा लोफर सा राशिद कहीं खो गया था। मेरे सामने एक हैंडसम लड़का खड़ा था जिसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो अनपढ़ है। मैं रोती हुई अचानक ही राशिद के सीने से जा लगी थी। मैंने सारी हदें तोड़ दी थी। मैं ये भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ और राशिद से मेरा कोई ताल्लुक था। राशिद बहुत देर तक यूं ही खड़ा रहा और मैं राशिद के सीने से लगी रही। मेरे मुंह से बस यही लफ्ज निकल रहे थे, राशिद मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, शायद इसलिए खुदा ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। बहुत देर बाद राशिद ने मेरे सर पर हाथ रखा था। उसने कहा, मैंने तुम्हें कभी कसूरवार ठहराया ही नहीं था। गलती तो मेरी ही थी जो मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। मैं आंसू पोंछती हुई राशिद के सीने से अलग हुई थी। थोड़ी देर बाद राशिद बोला कि मेरे दिल के दरवाजे अभी भी तुम्हारे लिए खुले हैं। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और लड़की नहीं है, चाहे तो झांक कर देख सकती हो। एक पल के लिए राशिद के चेहरे पर वही शरारत उभर आई थी।
जो अब से 7 साल पहले लापरवाह से राशिद के चेहरे पर हुआ करती थी। मैंने रोते हुए कहा, राशिद अब मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ, मैं रियाज की बीवी और एक बांझ औरत हूँ। उसने कहा था कि आमना तुम मेरे लिए अब भी वही 7 साल पहले वाली आमना हो जिससे मैं बेताशा मोहब्बत करता था और आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा और बांझ हो, लेकिन मैं इतनी खुद गर्ज नहीं हो सकती थी कि राशिद की जिंदगी में रोशनी भरने की बजाय उसकी जिंदगी में अंधेरा भर देती। मैं उसे बच्चों की खुशी नहीं दे सकती थी और रियाज ने मुझे जो जख्म दिया था वो अभी ताजा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल अब किसी मर्द पर यकीन नहीं कर रहा था। मर्द मर्द ही होता है, कहीं ऐसा ना हो राशिद को भी कल बच्चों की चाहत होने लगे और वो मुझसे नजरें चुरा ले। मैं रोती हुई बाहर भाग गई थी और अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर अपने घर वापस आ गई थी। मेरे पापा और मेरे भाइयों ने भी मेरी हालत को देखते हुए मुझे माफ कर दिया था। अगले दिन फिर राशिद मेरे पास आया था। उसने उदासी भरे लफ्जों में कहा था, मोहब्बत इतनी खोखली है कि खुदा ने मुझे दूसरी बार मौका दिया और तब भी तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अगर आज तुमने मेरी मोहब्बत को नहीं अपनाया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा, कभी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं ये कांच की चूड़ियां तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है तो तुम इन्हें पहनकर बाहर आ जाना, नहीं तो इन्हें तोड़कर इनके टुकड़े मेरे पास ले आना। ये कहकर राशिद कांच की चूड़ियां मेरे बेड पर रखकर चला गया था। मैं बहुत देर तक इन कांच की चूड़ियों को देखती रही थी। खुदा ने मुझे दूसरा मौका दिया था, एक सच्चे प्यार को पाने का मौका दिया था और अब मैं इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने वो कांच की चूड़ियां उठाई और अपने हाथों में पहन ली थी। जब मैं बाहर निकल कर आई तो राशिद मम्मी के साथ बातों में बिजी था। मैंने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। मुझे बाहर आते देखकर राशिद के चेहरे का रंग बदल गया था। यही सोच रहा था कि मैं चूड़ियों के टुकड़े करके लेकर आई हूँ और जब मैंने हाथ सामने किए थे तो वो खुशी से उछल पड़ा था। उसने मम्मी का लिहाज किए बिना मेरे हाथों को चूम लिया था। मम्मी ने खांस कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था और उसने जल्दी से मेरे हाथ छोड़ दिए थे। मैं हंसती हुई अपने कमरे में भाग गई थी। मेरी तरफ से हाँ होते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। उधर मेरे भाइयों और बाप ने रियाज से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दे रखी थी। एक हफ्ते में ही मेरा और रियाज का तलाक हो गया था और मेरी शादी मेरी इद्दत पूरी होने के बाद राशिद से हो गई। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से की थी। ऐसा लग रहा था कि ये शादी मेरी पहली शादी है। शादी की खुशी क्या होती है वो मुझे अब महसूस हो रही थी। इससे पहले तो मैं रियाज के साथ बस कोर्ट मैरिज की थी। सुहाग की सेज पर बैठी मैं राशिद का इंतजार कर रही थी तो मेरे दिल में कहीं भी रियाज की परछाई नहीं थी, बस राशिद के नाम से ही दिल धड़क रहा था। और जब राशिद कमरे में आया था तो मैं और भी सिमट कर बैठ गई थी और जब राशिद ने मुझे बाहों में भरते हुए मेरे कान के पास अपना मुंह ले जाकर मधोश लहजे में कहा, तुम सिर्फ मेरी हो, मैंने शर्मा कर अपना सर राशिद के सीने में छिपा लिया था। राशिद ने भी कस कर मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। राशिद के साथ जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी कभी सोचा नहीं था। राशिद की मोहब्बत के साए में 1 साल गुजर चुका था। मैं राशिद को अपनी और रियाज की सारी कहानी सुना दी थी। राशिद ने मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया था और डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई थी इलाज के बाद मैं माँ बन सकती हूँ। और एक दिन मार्केट में शॉपिंग करते हुए मेरी मुलाकात रियाज से हुई थी, लेकिन रियाज के चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी। मुझे देखते ही वो मेरे पास आया था, मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। कहने लगा, आमना मैंने और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सजा खुदा ने मुझे दे दी है। मेरी माँ पैरालाइज हो गई है और वो बिस्तर पर पड़ी रहती है। मेरी माँ को पोता खिलाने की बहुत जल्दी थी और जब शादी के 1 साल नहीं हुई तो मैंने और आबदा ने अपने टेस्ट करवाए जिसमें आबदा की रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट में आया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अब आबदा दिन रात मुझे आबांझ होने के ताने देती है। आमना मुझे तुम्हारी मोहब्बत याद आती है लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी जिंदगी से जा चुकी हो, लेकिन बस एक काम कर सकता हूँ कि तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांग सकता हूँ। अगर तुम माफ कर सकती हो तो प्लीज जरूर कर देना। हो सकता है तुम्हारे माफ करने से मेरी जिंदगी में आए हुए दुख थोड़े से कम हो जाए। मैंने कस कर राशिद का हाथ पकड़ा और राशिद की तरफ देखते हुए रियाज से कहा था कि रियाज, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। जब खुदा ने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे दी तो फिर भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें सजा देने वाली। और इतना कहकर मैं आगे बढ़ गई थी। रियाज सारे हुए जवारी की तरह मुझे देखता रहा था और मैं राशिद का हाथ थामे आगे बढ़ती जा रही थी जहाँ आगे जिंदगी में मेरे लिए खुशियां ही खुशियां थी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को